چین میں ایک ہفتے کے دوران روزانہ لگ بھگ 3 کروڑ 70 لاکھ افراد کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ ایک نئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ایک حالیہ اجلاس میں تخمینہ لگایا گیا کہ دسمبر کے اولین 20 دن کے دوران 24 کروڑ 80 لاکھ افراد چین کی 18% آبادی کو ممکنہ طور پر کووڈ-19 کا سامنا ہوا۔ چین کی جانب سے زبردست کووڈ پالیسی کو ختم کیے جانے کے بعد سے کرونا وائرس کی زیادہ متعدی اقسام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے تخمینے کے مطابق دارالحکومت بیجنگ اور صوبہ شویان کی 50% آبادی کووڈ سے متاثر ہو چکی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے یہ تخمینہ کیسے لگایا، کیونکہ اب چین میں پہلے کی طرح ٹیسٹنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ پر نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح چین کی جانب سے کووڈ کے بغیر علامات والے کیسز کی تعداد کو بھی اب رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں کووڈ سے ہلاکتوں کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی۔ حالیہ دنوں کے دوران پڑوسی ملک میں کرونا کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے کونسل کے اجلاس میں سڑکوں اور دیگر بنیادی ضروریات کے مسئلے پر بی جے پی کے کارپوریٹرز نے شدید احتجاج کیا۔ زعفرانی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارپوریٹرز نے اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ میئر نے ان کو نشستوں پر واپس جانے کی ہدایت دی، تاہم میئر کی ہدایت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بعد ازاں میئر نے اجلاس کو چائے کے وقفے کے لیے ملتوی کر دیا۔ تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ، جس کو معمار دستور ہند ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نام پر رکھا گیا ہے، کا افتتاح توقع ہے کہ پونگل کے بعد کیا جائے گا۔ اس عصری اور تمام سہولتوں سے لیس عمارت کی تعمیر کے کام آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں۔ مزدور 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس عمارت کو تیار کیا جا سکے۔ ان پر قومی نشان لگانے کے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کرینز کی مدد سے قومی نشان گنبدوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ ان نشانات کا وزن 5 ٹن ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دفتر کے کاموں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ فرش کے کاموں کے لیے خصوصی ماربلز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دیگر بقیہ کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کی تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دی گئی مہلت کے مطابق ہی ان کاموں کی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی سیکریٹریٹ میں مسجد مندر کے کام بھی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں۔ مخرب اخلاق فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کے بلیک میل سے تنگ آ کر مدھیہ پردیش کے اجین میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے زہر پی لیا۔ اس خاندان نے خودکشی کا ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ اس پورن سٹار نے انہیں ہراساں کیا ہے۔ ان تمام کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس لڑکی کا تعلق گوہاٹی سے ہے۔ میرا نام عاشق خان ہے اور یہ میری ممی ہے، یہ میری وائف ہے۔ ہم لوگ ایک رمجھم داس کر کے لڑکی ہے جو کہ ممبئی میں پورن سٹار ہے۔ اس نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہے کہ سوسائڈ کرنے کی دھمکی دیتی ہے کہ تم مجھ سے پیسے نہیں دو گے تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ میری شادی کے ٹائم پہ بھی اس کو پیسے دیے اور ابھی بھی پیسوں کی ضد کر رہی ہے کہ پیسے دو نہیں تو میں تجھے اندر کر دوں گی۔ ایک بار ممبئی میں تو اس نے اندر کرائے 376 میں، ابھی تھوڑے ٹائم پہلے اجین میں بھی مجھے بند کروا دیا اور ابھی یہ بول رہی ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں گی، تم پیسے دو، کچھ بھی کرو۔ اب میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ ہم لوگ کی کنڈیشن نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہو کے زہر کھا رہا ہے۔ یہ میری ممی اور ہم فیملی پورے ہی زہر کھا رہا ہے۔ ہم لوگ نے زہر کھا لیا۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 4 سبری ملا یاتری کیرلا میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ایڈوکلکی ضلع میں اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا اور یہ گاڑی الٹ گئی۔ مہلوکین کے ناموں کا پتہ نہیں چل سکا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेव पार्टी का पता चलाया। इस रेव पार्टी का पुलिस ने कल इस धावे के जरिए पता चलाते हुए 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि 217 शराब की बोतलों के साथ साथ हुक्का मशीनों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। महाकाली पुलिस ने 6 साल लड़की को आजाद करवा लिया जिसका अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि 6 साल लड़की जिसकी शिनाख्त कृति के तौर पर की गई है अपने घर के सामने खेल रही थी। उनके 35 साल राम नामी शख्स ने इसका अगवा कर लिया। लड़की की मां रेणुका खान की मुलाजिम बताई गई है। लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई जिस पर पुलिस की 10 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए सीसीटीवी फुटेज हासिल किया गया जिसमें पता चला कि लड़की सिद्दीपेट में है। इसे वहां से बाहिफाजत आजाद करवा लिया गया। अगवा के बाद अगवा कुरिंदगान लड़की को लेकर जोबली बस स्टेशन ऑटो में पहुंचे और वहां से बजरिए बस वो सिद्दीपेट के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने लड़की के कान की बालियां निकाल कर अपने पास रखी। इस दौरान मुकामी अफराद को शुबा हुआ जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనకి రేణుక అని ఒక లేడీ ఆమె ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తున్నారు. ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ షాప్లో ప్యాకేజింగ్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఉండేది చిలుకలగూడ ఏరియాలో. బట్ మదర్ ఫాదర్ వర్కింగ్ చేస్తుండడం వల్ల అమ్మమ్మ ఇంట్లో అంటే గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేసి పాపని వాళ్ళు పనికి వెళ్ళారు. అయితే 10:30 to 11 మధ్యలో పాప మిస్ అయింది అని చెప్పేసి 11కి మనకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అయితే మనం ఇమీడియట్లీ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసాము అండర్ సెక్షన్స్ 365 ఐపీసీ అండ్ ఆల్సో SC/ST ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ 325A. సో దాని తర్వాత ఒక 10 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. బికాజ్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్డ్ చిన్న పాప ఉంది, 6 years పాప కృతిక అనేటటువంటి రేణుక గారి కుమార్తె. ఈ అమ్మాయి ఫుటేజెస్ చూసినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తితో వెళ్తుందనేసి. సో ఇది క్లియర్ కట్ కిడ్నాప్గా భావించి మనం 10 టీమ్స్ పెట్టి సీసీ ఫుటేజెస్ ఆధారంగా ట్రాక్ చేయడం జరిగింది. పొద్దున్నుంచి ఈ ట్రాకింగ్లో మనకి లభ్యమైన క్లూస్తో చెప్పగలిగింది ఏంటంటే పాపకి 1 gram స్టడ్స్ ఉన్నాయి చౌకి. ఆ స్టడ్స్ ఇతను ఒక కత్తెర అడిగి తీసుకుని అక్కడ ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ స్టడ్స్ తీసేసుకొని ఒక పేపర్లో చుట్టుకొని పెట్టుకున్నాడు. తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆటో ఎక్కారు. ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఆటో ఎక్కి JBS దగ్గర వరకు వెళ్ళారు. అక్కడ డ్రాప్ అయ్యారు. దాని తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక బస్ ఎక్కి సిద్దిపేటకి వెళ్ళేటటువంటి ఒక బస్ ఎక్కి హకీంపేట్ బస్ స్టాప్ దగ్గర ఈ విలేజ్లో దిగారు. ధూళిమిట్ట విలేజ్ అండ్ ధూళిమిట్ట మండల్, సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్. ఆ తర్వాత అక్కడ విలేజెస్కి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము నాట్ ఓన్లీ CCTV ఫుటేజెస్, మనము ఈవెన్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనకి క్రూషియల్గా హెల్ప్ చేసినటువంటి వ్యక్తులలో ఆటో డ్రైవర్ మహేందర్ కూడా మనకి టైంకి తగిన సమాచారం ఇచ్చారు. అదే సమయంలో ఈ విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ గారు కూడా ఏదో అనుమానంగా ఉంది ఇతని వ్యవహారం అని చెప్పేసి, అతను సైకో అని తెలుస్తుంది. ఇతని పేరు నరోజీ రామ్, సన్ ఆఫ్ యాదగిరి, ఏజ్ 35 years. అయితే తల్లి తండ్రి లేరు, ఫ్యామిలీ కూడా ఇతనికి లేదు. ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అని వాళ్ళు అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఆమె చిలుకలగూడలో ఉంటాం మిమ్మల్ని చెప్పింది. వాళ్ళు లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. తర్వాత మన వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి అమ్మాయిని వీడియో కాల్లో మాట్లాడి నిర్ధారించుకుని అండ్ తల్లితో కూడా వీడియో కాల్ చేయించి మాట్లాడించడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ కేసుని మనం అత్యంత త్వరగా ఎటువంటి హామ్ అమ్మాయికి జరగకముందే డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మా ఆఫీసర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా స్ట్రాటజిక్గా క్విక్గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ఎవ్రీబడి. ముంగల్లో తీసుకుని లేచిపోతున్నాను.
ఇక్కడ వాళ్ళు వస్తారు పికప్ చేసుకుంటారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. मेरठ में पेश आए सड़क हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। ये हादसा मेरठ की बल्दिया के दफ्तर के करीब पेश आया। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस कैमरे में दिखाया गया है कि तेज रफ्तार कार ने इन सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। इनकी शनाख्त हनूज नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रजाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि कमिश्नरेट हुदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 19% इजाफा हुआ है। रजाकोंडा कमिश्नरेट के साल 2022 की सालाना राउंड अप रिपोर्ट जारी की गई है। महेश भागवत ने साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में जराइम में इजाफे का इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 21,685 मुकदमात दर्ज किए गए थे, ताहम इस साल 25,815 मुकदमात दर्ज हुए हैं। रजाकोंडा में साइबर क्राइम्स में भी इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल 1,360 मुकदमात के मुकाबले इस साल 2,049 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद के जराइम में 23%, NDPS में 140%, गेमिंग एक्ट में 17%, कत्ल में 29%, अगवा में 38% और खवातीन के कत्ल में 63% इजाफा हुआ है। CP महेश मुरलीधर भागवत ने कहा है कि हर शिकायत के लिए FIR के इंदराज और देही इलाकों में आबादी में इजाफे की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने 7 साल तक रजाकोंडा CP की जिम्मेदारी सौंपने पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया है। सईद मोबिन అండ్ బ్రదర్ ఇన్ లా మసూద్ అహ్మద్ ఆయన మీద దాడి చేస్తూ ఆయనకి చంపేశారు. ఈ ఆనర్ కిల్లింగ్ అని పర్వత్య ఈ కేసులో ఇమీడియట్లీ ఆ ఇద్దరు ముద్దాయిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ కేసులో ఎల్బీ నగర్ కోర్టులో ట్రయల్ కొనసాగుతుంది. ఈ కేసులో కూడా డెఫినెట్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ maximum punishment to the accused. This case is booked under murder and SCST Act. మన ACP ఎల్బీ నగర్ ఆయన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత 1 మార్చ్ 2022 రోజు మా ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఈ ఇద్దరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు నావారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అండ్ కోమటి రెడ్డి రాఘవేంద్ర రెడ్డి వాళ్ళ ఇద్దరికి తుపాకీతో కాల్చి వాళ్ళకి హత్య చేయడం జరిగినాయి. ఆ కేసులో మహారెడ్డి మంటారెడ్డి అలియాస్ అశోక్ రెడ్డి తర్వాత ఇంకో 7 దాంట్లో బిహార్ నుంచి కూడా కొన్ని కిరాయిలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేస్తూ దాంట్లో 2.32 కంట్రిబ్యూమెంట్ ఇస్తూ లైఫ్ కార్ట్రిడ్జ్ అండ్ మిగతాని జప్తు చేయడం జరిగినాయి. ఈ కేసులో కూడా ఈ మంత్ ట్రయల్ షెడ్యూల్ అందించాము. वज़ीर खजाना हरीश राव ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें वक्त पर दी जाएंगी और महकमा तालीम में तमाम आसामियों को पुर किया जाएगा। STU की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए हरीश राव ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर का मसला जल्द ही होने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जानबूझकर रियासती हुकूमत को माली तौर पर नुकसान पहुँचाने का इल्जाम आयद करते हुए मरकज की जानिब से 40,000 करोड़ रुपए के बजट को रोक देने का इंकशाफ किया है। वजीर खजाना का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने मॉडल स्कूल्स को खत्म करने के अलावा आंगनवाड़ी मराकज की तादाद कम कर दी है। मॉडल स्कूल्स खत्म कर देने से हजारों गरीब होनहार तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। हरीश राव ने महकमा तालीम में खाली आसामियों को पुर करने, असातिज़ा की तरक्की का अमल जारी रखने का ऐलान भी किया है। సవితక్క అన్ని విషయాలు చెప్పి నేను కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకొని బహుశా మీ అందరికి ఆకలి అవుతుండొచ్చు, కానీ 2-3 విషయాలు. ఒకటి, సరే ఆర్థిక మంత్రి విద్యా మంత్రి ఉండే మరి ఏం సంగతి అని డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు. కానీ ఉన్న విషయం 2-3 మాట్లాడుకుందాం. ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రమోషన్ల విషయంలో, బదిలీల విషయంలో చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు. తప్పకుండా మీ యొక్క ఆకాంక్షను మా సబితక్క నేతృత్వంలో నెరవేరుస్తామని చెప్పి కూడా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇవాళ ఇతర అంశాలు కూడా మీరు గమనించాలి. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడల్ స్కూల్ రద్దు చేసింది, కానీ మనం వాటిని కొనసాగించుకున్నాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీల బడ్జెట్ను సగానికి సగం కోతలు పెట్టింది. కానీ మనం వాటిని యథావిధిగా కొనసాగిస్తూ ఇంకా దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ పెంచినాం, వాళ్ళ వేతనాలు పెంచినాం, పౌష్టిక ఆహారం పెంచినాం, దాని స్టాండర్డ్స్ పెంచి ఇలా వాటిని ఇంకా బలోపేతం చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి ఈ రకంగా ఇలా మంచి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ఇప్పుడే సబితక్క చెప్పింది. మీరు ఇలా ఎన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వచ్చినాయంటే రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కేవలం 298 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు ఉంటే ఇవాళ 1201 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. 4 గంటలు పెరిగినాయి. దాని బడ్జెట్ కూడా చూస్తే 390 కోట్లు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో మీద గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెడితే ఈ రోజు రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళ మీద 3250 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళ మీద మన బడ్జెట్ 10 అంతలకు పైగా పెరిగిందనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गवर्निंग काउंसिल इजलास बजट पास करने के बाद मुलतवी कर दिया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने साल 2023-2024 के लिए बजट मंजूर करने के बाद कार्रवाई को रोक दिया। इजलास के शुरू होते ही अपोजिशन कॉरपोरेटर्स ने मेयर के पोडियम का घेराव करते हुए उनके मुतालबात पर बहस करने की मांग की थी। मेयर विजय लक्ष्मी ने अरकान से बार बार अपनी कुर्सियों पर बैठने की अपील की, ताहम उन पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार इंतबाह के बाद अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। बगैर बहस के बजट मंजूर कर देने पर बीजेपी और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने एतराज जताया है। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के पेश नजर जीएचएमसी दफ्तर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। మంచిగా అంటే మంచి విధంగా పాల్గొనకుండా వాళ్ళవి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అంటే బడ్జెట్ గురించి డిస్కషన్ చేయకుండా వాళ్ళదేదో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అవి మనకు తెలుసుకోకుండా అంటే ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్గా వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చినా సరే ఈ రోజు వాళ్ళు మాట్లాడకుండా డిస్కషన్ చేయకుండా అంటే వాళ్ళు అడగడం అంటే వాళ్ళకి ప్రజల సమస్య ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఈ రోజు తెలిసింది. అంటే మేము వాళ్ళకి మనం వెయిట్ చేస్తున్నామే ఒక ప్రజల సమస్య ఈ రోజు డిస్కస్ చేయడానికి ఈ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఎందుకంటే బడ్జెట్ కానివ్వండి, ఈ రోజు 5th కౌన్సిల్ మీట్ కానివ్వండి, ఇది మనం ప్రజల కోసం డిస్కస్ చేసే ఒక సమావేశం. ఆ సమావేశంలో వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా ఒక క్వశ్చన్ కూడా సభ్యులు మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళు అడ్డుపడడం మీరు అందరూ కూడా ప్రెస్ అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ రోజు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఈ రోజు వాళ్ళ ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన తెలంగాణలో ఈ రోజు వాళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యులు అంటే మన సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఈ రోజు కిషన్ రెడ్డి గారు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా కేబినెట్ హోదాలో ఉండి నేను అడుగుతున్నాను ఆయన ఎన్ని పైసలు మనకు తెచ్చిండ్రు ఇవాళ వరకు మీరు అది మెయిన్ ఇది చేయండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వరకు ఈ ఒక్క మున్సిపల్ జిహెచ్ఎంసీఏ కాదు, హైదరాబాద్ లిమిటే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న మున్సిపాలిటీ కూడా ఈ రోజు ఒక్క పైసా అంటే మాకొచ్చే నిధులు కూడా మనకొచ్చే మున్సిపాలిటీ నిధులు కూడా ఆయన తేలేకపోతున్నాడంటే మీరే అక్కడ గమనించాలి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहस किए बिना ही बजट मंजूर कर देने से नाराज कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के चेंबर के बाहर कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने जमहूरियत बचाओ का नारा देते हुए एहतजाज किया है। कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब बल्दिया में बहस किए बगैर ही बजट पास कर दिया गया। कॉरपोरेटर्स ने मामूली मरम्मत के लिए भी फंड्स जारी न करने और अवामी मसाइल पर बहस न करने पर बीआरएस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स पर शदीद नुक्ताचीनी की है और जीएचएमसी का खात्मा करने का इल्जाम भी लगाया है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बजट पर बहस किए बगैर ही जीएचएमसी कौंसिल इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर अजीम देवबंदी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के बजट पर बहस किए बगैर ही इजलास मुलतवी कर देने से नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। जमहूरियत बचाओ के प्लाकार्ड्स थामे कॉरपोरेटर्स ने रियासती हुकूमत और मेयर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की। कबल अज़ीं कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी मेयर के चेंबर के सामने एहतजाज किया। नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया में एक भी मसला हल न होने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अक़लियतों को सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक करने पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया है।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर खजाना हरीश राव, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हुए इजलास में वजीर खजाना ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने पर रजामंदी दे दी है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा है कि फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने पहले ही इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और अब मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने वजीर आला KCR समेत वजीर खजाना हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। कल 23 तारीख हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से एक मीटिंग रखी गई। बजट के ताल्लुक़ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इकनॉमिकल सपोर्ट के तहत एक स्कीम शुरू की गई थी 50 करोड़ के बजट पे। एप्लीकेशंस रफ्ता बढ़ने की वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नौजवानों में जो छोटे मोटे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए KCR साहब ने और एक 70 करोड़ बजट को सैंक्शन किया गया। यानी कि पहले 50 करोड़, उसके बाद फिर 70 करोड़ बजट, टोटल 120 करोड़ बजट जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है इकनॉमिकली स्कीम के तहत। तो कल हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कोपुला ईश्वर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब हमने मिलकर जो है एक मीटिंग में ये तय किया कि 12,000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत लोन दिया जाए। हरीश राव साहब ने कहा कि फरवरी एंडिंग तक इसको ख़त्म करें ये स्कीम को, क्योंकि बहुत से लोग बेचैन हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है उम्मीद पे बहुत से नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद एक खाना याकूतपुर में शेड की दोबारा तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सदर रशीद मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने जिले मेरचल मरकाजगिरी के मोदी चिंतलापल्ली याकूतपुर में वाक़ मस्जिद एक खाना के शेड की दोबारा तामीर के लिए 5 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक मुंतज़मीन के हवाले किया है। इंतजामिया ने वक्फ बोर्ड सदर रशीद से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने पेद्दागट्टू जतरा के इंतजामात के सिलसिले में जिला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। आइंदा साल फरवरी के महीने में जिले सूर्यापेट में श्री श्री लिंगा मंटुला स्वामी जतरा के इनेकाद से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़िद किया गया। वजीर जगदीश रेड्डी ने जतरा के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने अक़ीदतमंदों को सहूलियात फराहम करने की हिदायतें जारी की हैं। SP राजेंद्र प्रसाद, म्यूनसिपल चेयरपर्सन P अन्नापूर्णा, एडिशनल कलेक्टर मोहन राव, मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। रोहिन रेड्डी की सदारत में इंदिरा भवन में मुनक़िद इजलास में TPCC वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर लीडर्स V हनुमंतराव, निरंजन रेड्डी, विनोद रेड्डी, M साई, अभिजीत व दीगर ने शिरकत की। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत 26 जनवरी साल 2023 से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने इस अभियान को कामयाब बनाने की अपील की है। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। रोहिन रेड्डी की सदारत में इंदिरा भवन में मुनक़िद इजलास में TPCC वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर लीडर्स V हनुमंतराव, निरंजन रेड्डी, विनोद रेड्डी, M साई, अभिजीत व दीगर ने शिरकत की। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत 26 जनवरी साल 2023 से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने इस अभियान को कामयाब बनाने की अपील की है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मास्क पहनने और एहतियात बरतने का आवाम को मशवरा दिया है। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत चौकस हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरीन के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट के नतीजे मुस्बित आने, कोरोना की अलामात पाए जाने पर मुसाफिरीन को क्वारंटीना में रखा जाएगा। मनसुख मांडविया का कहना है कि महकमा हवाबाजी से बात करने के बाद वो इस सिलसिले में हुक्म जारी करेंगे। चीन में कोरोना के फैलाव को देखते हुए हवाई अड्डों पर चीन के मुसाफिरीन के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को चौकसी इख्तियार करते हुए
कोरोना पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 201 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,00,000 से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस बढ़कर 3,397 हुए हैं। यौमिया मुस्बित शरह 0.15% और हफ्तावार मुस्बित शरह 0.14% रिकॉर्ड की गई है। चीन व दीगर ममालिक में बढ़ते कोरोना केसेस के सबब मुल्क के महकमा सेहत ने मजीद चौकसी इख्तियार कर ली है। एक दिन में 1,36,315 कोविड टेस्ट किए गए हैं। हिंदुस्तान में अब तक 90,97,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इस बीमारी से 4,41,42,791 अफराद सेहत याब हुए हैं। सेहत याबी की शरह 98.8% और शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।